ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ کون سی نشانیاں نازل ہوتی ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ 3 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کے لیے بڑا مقام لکھ رہا ہے۔ صبر، امتحان اور وہ روحانی راز جو انسان کو اونچائیوں تک پہنچاتا ہے۔ کیوں اللہ کبھی درد، کبھی سختی اور کبھی سکون کے ذریعے اپنے پیارے بندے کی روح کو نکھارتا ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کس طرح اپنے پیارے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے اور اٹھاتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کی روح کو نورانی بنا دے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اپنے حالات سے پریشان ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شاید انہی مشکلوں کے پیچھے اللہ کا کوئی بڑا انعام چھپا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل بٹن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیٹس بگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچانک اتنے امتحان کیوں آنے لگے؟ وہ دروازے جو کبھی کھلے رہتے تھے کیوں ایک ایک کر کے بند ہو گئے؟ وہ لوگ جو آپ کے اپنے تھے کیوں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے؟ اور وہ دعائیں جو آپ بار بار مانگتے ہیں کیوں جیسے آسمان تک پہنچ کر بھی جواب نہیں لا رہی؟ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اونچا مقام، بڑا درجہ دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے اس کی زندگی میں ایسی رہسیمئی نشانیاں نازل ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان خود حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائشوں سے گزار کر، اس کے صبر کو پرکھ کر اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کبھی کبھی اچانک حالات ایسے بدلتے ہیں کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ دروازے بند ہوتے ہیں، راستے تنگ ہو جاتے ہیں، دل میں بے چینی گھر کر لیتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو اگلے پڑاؤ پر لے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب کسی انسان کی دعاؤں کا جواب دیر سے آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے اس کی سنوائی نہیں کی، مگر اصل میں اللہ اس بندے کو اونچائی دینے کے لیے اور بھی بڑا انعام تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش کوئی سزا نہیں ہوتی بلکہ اونچے درجے کی دعوت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی یہ نشانیاں انسان کی روح تک اثر ڈالتی ہیں۔ وہ کبھی انسان کو تنہائی میں رلاتا ہے، کبھی ایسے حالات پیدا کرتا ہے جن میں اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا کرم سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بھی زندگی میں ایسے لمحات آ رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مشکلات سے گزر رہے ہیں اور دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں، تو آپ کمنٹ میں اپنی پریشانی اور تکلیف ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ ہی میں سے 5 لوگوں کے لیے خاص دعا کریں گے، اور اسی ویڈیو کے آخر میں بھی 5 لوگوں کی مشکلات کا ذکر کر کے ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی زندگی میں ایسی تنگ دستیاں اور ایسی مشکلات اتارتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی گزرا نہیں ہوتا۔ اچانک حالات تنگ ہو جاتے ہیں، جو کام آسانی سے ہو جایا کرتے تھے وہ رکاوٹوں میں الجھ جاتے ہیں۔ جن دروازوں پر ہمیشہ راحت ملتی تھی وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی روح کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اس کے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے اور اسے اس مقام کے قابل بنا رہا ہوتا ہے جو عام انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ روحانی کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عادتوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ بندے کو آسان راستوں سے ہٹا کر مشکل راستوں کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ آسانیوں سے انسان کبھی اونچائی تک نہیں پہنچتا۔ یہ مشکلیں دراصل ایک اشارہ ہوتی ہیں کہ اب آپ کو اونچا درجہ ملنے والا ہے۔ ذرا سوچئے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا حاکم بنایا، لیکن اس سے پہلے انہیں گڈھے میں ڈالا گیا، غلامی کرائی گئی،
जेलों की अंधेरों में रखा गया। उस वक्त अगर कोई उन्हें देखता तो कहता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला तो उनके लिए एक ऊंचा मुकाम तैयार कर रहा था। यही अल्लाह का तरीका है, इज्जत देने से पहले आजमाइश देता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी दरवाजे बंद हो रहे हैं, काम रुक रहे हैं, लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो डरिए मत। ये अल्लाह की रहमत की पहली निशानी है कि वो आपको अगले मुकाम पर ले जाने वाला है। पहली निशानी की गहराई में उतरे तो पता चलता है कि जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचाई देने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसकी जिंदगी में अजीब व गरीब तंगदस्तियां और आजमाइशें नाजिल होती हैं। ये मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और रूह तक उतर जाती हैं। अचानक से वह देखता है कि जिस रास्ते पर हमेशा सुगमता रहती थी, वही रास्ता अब पत्थरों और कांटों से भर गया है। जो लोग उसका सहारा हुआ करते थे, वही लोग उससे दूर होने लगते हैं। जिन दरवाजों पर उसे उम्मीद होती थी, वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। मगर ये अंधेरा दरअसल एक नई सुबह का पैगाम होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदे का दिल सिर्फ उसी की तरफ झुके। अगर सब आसान होता तो शायद वह बंदे को अल्लाह की याद की सच्चाई कभी महसूस ही न होती। यही वजह है कि जब अल्लाह किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है तो पहले उसके दिल से दुनिया के सहारे छीन लेता है। लोग उसका साथ छोड़ते हैं, जाहिरी मदद के रास्ते बंद होते हैं और इंसान मजबूर होकर सिर्फ अल्लाह से लिपट जाता है। यही वह लम्हा होता है जब उसकी रूह कहती है, ऐ मेरे रब, अब तेरे सिवा कोई नहीं। इतिहास गवाह है कि हर बड़े मकाम से पहले बड़ी तंगी और बड़ी आजमाइश आई। आप देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का मालिक बनाने से पहले गुलामी और कैद का दर्द दिया गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र का मुकाम देने से पहले उनकी जिंदगी से सेहत, दौलत, औलाद सब छीन लिया गया। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी यही पैगाम था। अल्लाह ने आपको सारी इंसानियत का रहनुमा बनाया, लेकिन उससे पहले ताइफ की गलियों में पत्थर खाए, मक्का के लोगों से ताने सुने, भूख और प्यास सही। असल में ये निशानी इशारा करती है कि अल्लाह उस बंदे को अपनी तरफ खींच रहा है। जो मुश्किलें आ रही हैं, वो उसकी रूह को गढ़ने का काम कर रही हैं। जिस तरह लोहे को तपाकर, पीटकर और आकार देकर तलवार बनाया जाता है, उसी तरह अल्लाह अपने बंदे को तपाकर मकाम देता है। अगर लोहा जलने और पिटने से इनकार कर दे तो कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह अगर इंसान इन आजमाइशों पर सब्र न करे तो ऊंचाई का हकदार भी नहीं बन सकता। सोचिए, जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो दिल में कैसी बेचैनी होती है। इंसान सोचता है कि अब कौन मदद करेगा, लेकिन यही वक्त है जब उसकी जबान से सच्चे दिल की दुआ निकलती है, जिसकी कीमत आसमान जानता है। अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदे को कैसे सब छूट गया और फिर भी वो सिर्फ मुझे पुकार रहा है। और यही वह दुआ होती है जो हद से ज्यादा कीमत रखती है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आ रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, दोस्त साथ छोड़ रहे हैं, घर के हालात तंग हो रहे हैं, एक के बाद दूसरी मुसीबत आ रही है, तो डरिए मत। ये अल्लाह का इशारा है कि वो आपको बड़ा मुकाम देने वाला है। अगर ये आजमाइशें ना आती तो शायद आप कभी उस रूहानी ऊंचाई तक न पहुंचते। याद रखिए, हर दरवाजे का बंद होना इस बात का ऐलान है कि अब आपको उस दरवाजे से बुलाया जा रहा है जिसका ताला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हर दर्द, हर आंसू, हर तकलीफ एक सीढ़ी है जो आपको और ऊपर ले जा रही है। और जब यह सिलसिला पूरा होता है तो वही इंसान जिसे लोग टूट चुका समझते थे, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी निशानी ये होती है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे के दिल में ऐसी अजीब व गरीब बेचैनी पैदा कर देता है जो किसी और चीज से दूर नहीं होती सिवाय उसके जिक्र और उसकी इबादत के। बाहर से देखने वाले समझते हैं कि ये इंसान परेशान है, उदास है, किसी गहरी सोच में है, लेकिन हकीकत में उस बंदे का दिल अब अल्लाह की तरफ खींचा जा रहा होता है। ये बेचैनी कभी अचानक तन्हाई में आंसुओं का समंदर बन जाती है। वो बंदे को रात की तन्हाई में रुलाती है, सजदे पर गिरा देती है और उसके दिल से सिर्फ यही आवाज निकलवाती है, या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं। यही वो इशारा है कि अल्लाह उस बंदे की रूह को साफ कर रहा है, उसके दिल की गंदगी धो रहा है और उसे उस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां सिर्फ उसके खास बंदे पहुंचते हैं। आप गौर कीजिए, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए जिनको अल्लाह ने ऊंचा दर्जा दिया, सबने इस बेचैनी का द्वार जरूर देखा। कभी ये बेचैनी इस तरह होती है कि हर खुशी अधूरी लगती है, हर दौलत बेकार महसूस होती है, हर रिश्ता अधूरा लगता है। इंसान अपने आसपास सब कुछ होने के बावजूद खालीपन महसूस करता है। दरअसल ये अल्लाह का पैगाम होता है
कि अब तेरा दिल सिर्फ मेरे लिए है। रूहानी वाकयात में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल से दुनियावी मोहब्बत कम कर देता है। वो इंसान अब महफिलों में रहकर भी तन्हा महसूस करता है, हंसते हुए भी दिल के अंदर सुकून नहीं पाता। और जब वो अकेला होता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसके दिल में एक अजीब सुकून उतरता है। ये सुकून किसी दवा से, किसी दौलत से, किसी इंसान से नहीं मिलता, सिर्फ अल्लाह से मिलता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी नेमत है ये कि अल्लाह खुद आपको अपने जिक्र की तरफ खींचे। यही बेचैनी दरअसल एक तोहफा है। लोग समझते हैं कि ये तकलीफ है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। और यही वो दूसरी निशानी है जो बताती है कि अब अल्लाह ताला अपने बंदे को ऊंचे दर्जे की तरफ ले जाने वाला है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दुनियावी मजों से भरकर भी अंदर से खाली हैं, अगर आपको लगता है कि आपके दिल को सुकून सिर्फ सजदे में मिलता है, तो खुश हो जाइए। ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है। ये इस बात का ऐलान है कि अब अल्लाह आपको अपने करीब ला रहा है, आपकी रूह को पवित्र कर रहा है और आपको उस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां सिर्फ उसके खास बंदे पहुंचते हैं। दूसरी निशानी की गहराई को समझना आसान नहीं, क्योंकि ये सीधे दिल और रूह से जुड़ी हुई होती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को ऊंचाई की तरफ बुलाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक ऐसी अजीब किस्म की बेचैनी पैदा कर देता है जो न मालो दौलत से मिटती है, न रिश्तों से, न ही दुनियावी आराम से। ये बेचैनी साधारण बेचैनी नहीं होती, बल्कि रूह की पुकार होती है। रूह का तड़पना होता है कि अब मुझे अपने असल मालिक से जोड़ दिया जाए। आप देखिए, इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, इज्जत, शोहरत, दौलत, दोस्त, मगर उसके दिल की गहराई में एक खालीपन रहता है। वो खालीपन उस वक्त और ज्यादा महसूस होता है जब वह रात की तन्हाई में अकेला बैठा होता है। उस वक्त अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दिल में अनजानी सी कसक पैदा होती है और जुबान पर बेइख्तियार सिर्फ एक ही नाम आता है, या अल्लाह। ये कोई साधारण आंसू नहीं होते, ये वो आंसू होते हैं जिनसे दिल की गंदगी धुलती है और रूह का पर्दा साफ होता है। रूहानी किताबों में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना करीबी बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसकी दुनियावी मोहब्बतें छीन लेता है। जो चीजें पहले उसे सुकून देती थीं, वही अब उसे बोझ महसूस होती हैं। पहले महफिलों में हंसी खुशी मिलती थी, अब वहीं दिल घुटने लगता है। पहले दोस्तों की बातों में चैन मिलता था, अब वहीं बेचैनी बढ़ती है। ये साधारण तजुर्बा नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगाम होता है कि अब तेरा दिल सिर्फ मेरे लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकयात है कि जब आप रात की तन्हाई में इबादत में खड़े होते थे तो आपके पांव सूज जाते थे। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने आपको सब कुछ बख्श दिया है तो इतनी मेहनत क्यों? तो आपने फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदे न बनूं? यही उस बेचैनी का मानी है कि अल्लाह अपने खास बंदे को रातों में उठाता है, सजदों में गिराता है और उसकी रूह को अपने नूर से रोशन करता है। ये बेचैनी एक इम्तिहान भी है और एक इनाम भी। लोग समझते हैं कि यह तकलीफ है, मगर असल में यह अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। जिस दिल को अल्लाह अपने जिक्र की तरफ खींच ले, वो दिल अब दुनिया के लिए कभी काबिल सुकून नहीं रह सकता। वह सिर्फ सजदों में सुकून पाएगा, दुआओं में चैन पाएगा और आंसुओं में राहत महसूस करेगा। सोचिए, क्या ये मामूली बात है कि खुद मालिक कायनात आपको अपने करीब बुला रहा है? ये तो वो तोहफा है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। जब आपके दिल में साधारण रिश्तों और साधारण आराम से तसल्ली न मिले, तो समझ लीजिए कि ये वही दूसरी निशानी है। अल्लाह ताला आपको ऊंचे मुकाम की तरफ ले जाने वाला है। और जब ये सिलसिला पूरा होता है तो इंसान बदल जाता है, उसकी नजरों का रंग बदल जाता है, उसके लफ्जों की मिठास बदल जाती है और उसके सजदों की कीमत बदल जाती है। लोग बाहर से उसे वही पुराना इंसान देखते हैं, मगर असल में उसका दिल अब नूर से भर चुका होता है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह उस बंदे की रूह को अपने साथ जोड़ लेता है। तीसरी निशानी ये होती है कि जब इंसान अपने रब के सामने सच्चे दिल से गुनाहों की माफी मांग लेता है तो उसका दिल एक अजीब सी हल्कापन, सुकून महसूस करता है। यह हल्कापन सिर्फ उसकी सोच का धोखा नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह की रहमत होती है जो गुनाहों का बोझ उतार कर दिल को साफ कर देती है। गुनाह का बोझ इंसान को वैसे ही दबाता है जैसे किसी के कंधों पर भारी पत्थर रखा हो, और जब वह बोझ हटता है तो इंसान महसूस करता है कि अब उसकी रूह हल्की हो गई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तौबा, माफी मांगना सिर्फ अल्लाह से कह देने का नाम है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन असल तौबा वो होती है जिसमें दिल कांप रहा हो,
आंखें नम हों और इंसान अपने के पर शर्मिंदगी महसूस करे। जब दिल इस हालत से गुजरता है तो अल्लाह अपने फजल से उस गुनाह को मिटा देता है और इंसान को ऐसा एहसास कराता है जैसे वह अभी अभी एक नई जिंदगी लेकर खड़ा हुआ हो। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना कोई यात्री उस ऊंट को पाकर खुश होता है जिस पर उसका पूरा सामान और सफर की जरूरतें रखी थीं और वो खो गया था। यानी सोचिए, जब कोई इंसान सब कुछ खोकर मायूस बैठा हो और अचानक उसकी उम्मीद लौट आए तो उसे कितनी राहत मिलती है। अल्लाह की रहमत उसी तरह बंदे के दिल को खुश कर देती है। और यह भी देखिए कि जब इंसान तौबा करता है तो उसके दिल में यह एहसास पैदा होता है कि अब अल्लाह से रिश्ता फिर से जुड़ गया है। यही रिश्ता असल में हर तसल्ली की जड़ है। दुनिया के सारे रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बतें और सहारे उस वक्त बेमानी हो जाते हैं जब दिल में अल्लाह का सहारा मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह की ओर लौटने के बाद इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरा रब मेरे साथ है। यह दिल का सुकून सिर्फ नमाज या तस्बीह पढ़ लेने से नहीं आता, बल्कि सच्ची तौबा और गुनाहों से तौबा करने की वजह से आता है। यही अल्लाह की रहमत की एक बड़ी निशानी है। जब आप देखेंगे कि आपका दिल बार बार आपको खींच रहा है कि रब के सामने गिरकर माफी मांग लो, और जब आप सच में रोकर तौबा करेंगे तो आपका दिल ऐसा हल्का और रोशन हो जाएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस न किया हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वीडियो के इस हिस्से में मैं उन 5 लोगों का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी तकलीफें और दुआओं की गुजारिश कमेंट में लिखी है। मैं एक एक करके उनके नाम लूंगा और आप सबसे गुजारिश है कि जब उनका नाम और दर्द सुने तो दिल से इनके लिए दुआ करें। हो सकता है आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर कर दे। स्क्रीन पर उनका कमेंट भी आप देख रहे हैं। 1, सबसे पहले हमारे भाई। इन्होंने लिखा कि भाई मेरे बच्चों के लिए दुआ करो और खास करके फिलिस्तीन और गजा के मासूमों के लिए भी। ए मेरे रब, इन मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा, उनकी जिंदगी में रहमत बरसा और फिलिस्तीन गजा के हर बेगुनाह के दिल से दर्द और खौफ को मिटा और हमारे ईमान को उन जैसा पुख्ता कर। 2, हमारे भाई शाहिद अली। इन्होंने लिखा कि मुझसे बहुत गुनाह हो गए, कर्ज का बोझ बढ़ गया है, मेरे लिए दुआ कीजिए। या अल्लाह, शाहिद अली भाई के गुनाह माफ फरमा, उनका कर्ज आसान कर दे, उनकी रोजी रोटी में बरकत डाल और उन्हें हलाल और पाका रिज्क अता कर। 3, हमारे भाई अनवार खान लिखते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, हर लाइन से मेरे लिए दुआ कर दो। या रब, अनवर खान भाई की परेशानी दूर कर, उनके दिल को सुकून दे, उनके घर में रहमत उतार और उनकी हर मुसीबत को अपनी रहमत से आसान बना दे। 4, हमारे भाई आरिफ खान लिखते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। ए मेरे रब, आरिफ भाई की परेशानी दूर कर, उन्हें सब्र दे, उनके लिए हालात आसान बना और उनके दिल को अपनी याद से रोशन कर दे। 5, हमारी बहन फरहीन खान लिखती हैं कि मुझे 14 साल से मिर्गी की बीमारी है, बहुत परेशान हूँ। या शाफी, या काफी, तू ही शिफा देने वाला है। फरहीन बहन को इस बीमारी से निजात दे, उनके जिस्म को तंदुरुस्त कर, उनके सब्र को और मजबूत बना और उनकी जिंदगी में सेहत और रहमत भर दे। और अब मैं आप सबसे कहता हूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी इन 5 प्यारे भाइयों और बहन के लिए दुआ करें, क्योंकि कौन जानता है कि किसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हो सकता है कि आपकी दुआ की बरकत से इनकी परेशानी हल हो जाए। और आखिर में हम सब मिलकर फिलिस्तीन और गजा के लिए भी दुआ करते हैं। या अल्लाह, मासूम बच्चों और बेगुनाहों पर रहम फरमा, उनके लिए आसमान से मदद नाजिल कर, जालिमों से उन्हें निजात दे, उनके घरों और दिलों को फिर से आबाद कर और पूरी उम्मत को उनके साथ खड़ा होने की तौफीक अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिरी बात, भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो किस तरह से एक इंसान की तकलीफों इतनी बढ़ जाती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लोग वाक उनका साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल भी ना घबराएं, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला सबको देने वाला है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है, हम उसी टाइप का आपके लिए बनाएंगे ये वीडियो। तो चलिए, हमें इजाज़त दीजिए, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।